اس میں ریمن ہوتا ہے نا وہ لگا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کے سامنے پہلے بار میں عرض کیا کہ حروف تہجیہ کس طرح پڑھے جائیں گے. اس کے مختصر چھوٹے قواعد بتائے اور سب کے مخارج بھی انشاءاللہ تعالی آگے بیان کریں گے. صرف آپ کے سامنے ابھی تھوڑے سے مخارج بیان کروں گا اور تھوڑے بیان کر دیے ہیں. الف ہے وہ منہ کی خالی جگہ سے ادا ہوتا ہے. اور با ہے یہ دونوں ہونٹ مل کر ہونٹوں کی تری با 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 ہونٹوں دونوں ہونٹ مل کر دونوں ہونٹوں مل کر تری ہے نا ہونٹوں کی جو تری وہ وہاں سے با ہوتا ہے. پھر ہے تا. اوپر والے اپنے بڑے دانت ہیں ان کی جو جڑ ہے ان کی جو جڑ ہے وہاں سے کیا ادا ہوتا ہے تا. کیا تا. اور اوپر والے جو بڑے دانت ہیں ان کی سرا یہ اور زبان کی نوک یہاں پہ تھا ادا ہوگا. جیم کہاں سے ادا ہوگا؟ بیچ والا اپنا تالو ہے اور بیچ زبان تالو سے مل کر جیم ادا ہوتا. ویسے یہاں سے جو ابھی بتائیں بیچ زبان تالو سے مل کر 3 حروف ادا ہوتے ہیں. ایک تو جیم ایک شین اور یا. اور جو تھا بتایا تھا کی جگہ یہ اوپر والے اپنے بڑے جو دانت ہیں یہاں سے زبان کی نوک یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ایک تھا ایک را ایک رال. ہاں وہ کون کون سے ہیں ابھی بتائیں گے. ٹائم لگ جائے گا. میں ویسے تو بتانا یہ صحیح رہے گا انشاءاللہ تعالی. آسان بھی رہے گا اور سمجھ میں بھی آئے گا. الف ہے وہ منہ کی خالی جگہ سے سمجھ میں. اور با ہے وہ ہونٹوں کی جو تری والا جو باغ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے سمجھ میں. اور پھر آیا تا. تا یہاں سے 3 مخرج ادا ہوتے ہیں. اپنے جو اوپر والے جو دانت ہیں اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جو جڑ ہے اوپر جڑ ہے وہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ایک تا ایک تا ایک دال اور ایک تو. ہاں یہ 3 حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں. پھر ہے تھا. یہاں سے بھی یہ اپنے اوپر والے دانت ہیں اوپر والے دانت یہاں سے زبان کی ٹونچ لگے گی. یہاں زبان کی ٹونچ اوپر والے بڑے دانت تھا. یہاں سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں. ایک کون سا؟ ایک فا دوسرا غال اور تیسرا ضا. یہ 3 مخرج ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. پھر آگے جیم کا میں نے بتا دیا ابھی. جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جیم یعنی یہ اپنا اوپر والا تالو ہے اپنے یہ زبان ہے یہ زبان یہاں ٹچ ہوگی تو یہاں بھی 3 مخرج ادا ہوں گے. اور ایک تو جیم شین اور یا. جیم شین یا. اور اس کے علاوہ اس کے بعد حروف حلقی بتایا تھا. اس میں یہ اپنا گلا ہے. یہاں سے سینے کی جانب یہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں. وہ کون سے؟ ایک ہے حمزہ اور ایک ہے ہا. حمزہ اور ہا. اور بیچ والا گلا ہے یہاں سے 2 حرف ہو جاتے ہیں. کون کون سے؟ ایک ہے عین اور دوسرا ہے ہا. عین اور ہا. آخری جو اپنا حلقہ ہے یہاں سے منہ شروع ہو جاتا ہے گلا ہے اوپر والا تو یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ایک ہے غین اور دوسرا ہے خا. ہاں اس کے بعد جو عین آتا ہے عین کے بعد غین تو یہاں پہلے بیچ والا میں عین اور آخری حرف سے غین اور یہاں سے ہا اور یہاں سے خا. ہاں گلے میں کتنے حروف ہو گئے؟ ٹوٹل 6 حروف ہیں. مخرج 3 ہے. مخرج کا معنی ہے حرف کے نکلنے کی جگہ. اکھر جے نکلے جی جگہ. یہ ہو گیا. یہ بہت اچھا ہو گیا. ہاں اور اس کے بعد خا کا ہو گیا دال کا ہو گیا دال کا ہو گیا. را ہے یہ
اوپر والا تالو ہے، اس سے زبان کا پشت والا حصہ ملتا ہے، رو ادا ہوتا ہے. پھر یہ اپنا اوپر اور نیچے والے دانت، اوپر اور نیچے والے، اوپر اور نیچے والے دانت، اوپر اور نیچے والے، اوپر اور نیچے والے دونوں مل کر، اوپر اور نیچے والے دانت مل کر یہاں ٹچ ہوگی زبان. زا، زا ایک ہے زا، زا دوسرا ہے سین، سین، سین اور تیسرا ہے صاد، 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 صاد. ہاں یہ حروفوں میں سے بھی ہے تا اور صاد، مگر یہاں بھی مخرج معلوم کرنا ہے، حرف مخرج نکلنے کی جگہ معلوم، تو یہاں سے زا، سین اور صاد یہ ادا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہے سین آ گیا، شین بھی آ گیا، صاد بھی آ گیا اور ضاد. یہ سب سے یعنی کٹھن حروف ہے. مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علاوہ آج تک کسی نے جو اس کا جو اصل یعنی ساؤنڈ ہے وہ آج تک کسی نے ادا نہیں کر سکا ہے. کرتے ہیں کوشش، اللہ تعالیٰ قبول کرے. یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دائیں جانب والی، اوپر والی دائیں جانب والی جو داریں ہیں ان سے زبان کی کروٹ ٹچ ہوگی تو ضاد ادا ہوگا، یا اگر آپ آسان لگے تو بائیں جانب والی اوپر والی دار ضاد، اور ایسا نہ ہو تو نیچے والی دار یہاں سے بھی ادا، یا دائیں والی پھر بائیں والی، یا دونوں اوپر نیچے دونوں والی دار ضاد، یا اس طرف والی یا اس طرف، جہاں سے آپ کو آسان لگے. میں جب ادا کرتا ہوں تو دائیں والی جو دائیں والی داریں ہیں اس سے زبان کی کروٹ ٹچ ہوتی ہے تو داد اچھا ہوتا ہے. وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ اوپر والی جو ہوتا ہے یہاں سے داد ادا ہوتا ہے. پھر ہے داد کے بعد کیا ہے؟ داد کے بعد ہے طا، اس کا بھی آ گیا، ضا بھی آ گیا، عین بھی آ گیا، غین بھی آئے گا، فا. فا کا کیا مخرج ہے؟ اوپر، ہاں اوپر والے دان ہے نا یہ فا، اور نیچے والے ہونٹ کی تری فا، 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 ہاں فا، فا ادا ہوتا ہے. یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لو. فا. پھر ہے قاف اور کاف. اور کہاں ہے؟ ہلکا اپنا جہاں کاکڑا ہوتا ہے جہاں وہ ہاں کاکڑا ہوتا ہے وہاں سے قاف، نرم والا حصہ جہاں ہوتا ہے قاف، بالکل قاف. زبان کی جہاں یہ ہے راؤنڈ وہ ختم ہو جاتا ہے، زبان کی جڑ اوپر والے نرم تالو سے قاف، قاف، اور اس سے باہر تھوڑا باہر نکل کر زبان کی جو جڑ وہی ٹچ ہوگی. کاف، کاف وہ ہے قاف، یہ چھوٹا کاف، قاف، کاف، قاف، کاف وغیرہ. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد قاف کے بعد کاف، پھر ہے میم. کیا؟ لام اس لیے لکھا ہے کیونکہ الف ہے وہ اصل میں حمزہ ہے، اس لیے یہاں لام الف لکھ دیا. سمجھ میں؟ میم. میم دونوں ہونٹوں کی خشکی، با میں دونوں ہونٹوں کی تری با، اور میم میں دونوں ہونٹوں کی خشکی، یعنی خشک والا جو حصہ ہے سوکھا والا، ہاں وہ میم ہے، دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں میم. پھر نون، زبان کی نوک اوپر والا جو تالو ہے سامنے والے دانوں کی جڑوں کے اوپر، وہاں سے نون ادا ہوتا ہے. ہاں. اور واو. واو یہ بھی سینے کے جانب، واو اور ہا میں نے بتایا تھا، واو اور ہا. اور پھر میں نے آپ کو ہا کا بھی بتا دیا، حمزہ کا بھی، ہا اور حمزہ ایک جگہ سے سینے کی جانب سے تھا، اور یا کا بھی بتا دیا. یہ بتانے والا نہیں تھا مگر الحمدللہ وہ بھی بتا دیا. آگے چلو سورہ فاتحہ انشاءاللہ تعالی مختصر پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم،
पढ़ा जाएगा और अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। और वो मीम साक ये हुरूफ मद्दा भी होते रहते हैं। मीम साकिन या साकिन और उससे पहले कसरा हो तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, मीन आलमीन। और अर्रहमानिर्रहीम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, क्यों? या साकिन रहमानिर्रहीम रहीम, तो उनको नीचे खींचेंगे, अर्रहमानिर्रहीम रहीम। हाँ, इसके बाद मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। रोजे पहली वाली आयत का तर्जुमा था, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। रोजे जजा का मालिक यानी बदले के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का नहीं जिन पर गज़ब किया गया और नहीं गुमराहों का। आमीन। मखरज का मैंने आपके सामने बोल दिया, मखरज किस तरह अदा होता है ये भी बता दिया। और इसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हरकत का भी बोला था मैंने। हरकत किसको बोलते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को बोलते हैं। और ज़बर ज़ेर पेश को हरकत, और ज़बर ज़ेर पेश को अरबी में क्या कहते हैं? ज़बर को फतहा कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं, और पेश को दम्मा कहते हैं अरबी में। और जिस हरफ पर फतह कसरा और दम्मा आए उस हरफ को क्या कहते हैं? जिस हरफ पर फतहा आए उसको मक़तूअ, जिस हरफ पर कसरा ज़ेर आए उसको मक़सूर, जिस हरफ पर पेश दम्मा आए उसको मदमू। माशाअल्लाह। और इसके बाद दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तन्वीन कहते हैं। और जिस हरफ पर तन्वीन उसे मुनव्वन कहते हैं। और सुकून किसको कहते हैं? सुकून की अलामत मैंने आपको अर्ज कर दिया था कि ये सुकून की अलामत है। ये क्या है? सुकून की अलामत है, सुकून कहते हैं। और जिस हरफ पर ये सुकून, जिस हरफ पर ये आ जाए उसको क्या बोलते हैं? साकिन। सुकून से साकिन। हाँ, हो गया। और मुशद्दद, शद किसको बोलते हैं? तीन दंदों वाली, मैंने आपसे अर्ज किया था, तीन दंदों वाली शद। और जिस हरफ पर ये आ जाए उसे मुशद्दद कहते हैं। हाँ, और सूरे बकरा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज तिलावत थोड़ी सी करेंगे आखिर के अंदर इंशाअल्लाह। याद दिला देना अगर टाइम बचा तो। और हमजा और अलिफ का मैंने फर्क बताया था कि अलिफ हमेशा खाली अज हरकत होता है, यानी अलिफ पर कुछ हरकत नहीं होती, न इस पर ज़बर आती है, न ज़ेर आती है, न पेश आती है। इसकी मिसाल दे दी, क़ाल और बा वगैरह। और हमजा की पहचान क्या है? हमजा की वो इस पर हरकत आती है, ज़बर भी आती है, ज़ेर भी आती है, पेश भी दो ज़बर दो ज़ेर वगैरह वो आती है। और अलिफ बगैर झटके के अदा होता है, बगैर क़ाल का नहीं कहेंगे, क़ाल। हाँ, और हमजा है वो झटके के साथ अदा होगा, जहाँ भी आएगा झटके के साथ अदा होगा। जैसे युमिनून, 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 युमिनून। मा कबल किसको बोलते हैं?
حرف سے پہلے اس کو ماں قبل اور ماں بعد یعنی حرف کے بعد اسے ماں بعد کرے. بالکل آسان ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ حروف کا میں نے بتایا تھا, حروف منقوطہ کیسے کہتے ہیں, نقطے والے حروفوں کو منقوطہ کہتے ہیں. جیم ہے, جیم ہے اور غال ہے, زے ہے, یعنی جن پر نقطے ہوں, ٹپکے ہوتے ہیں وہ. اور بغیر نقطے والے حروفوں کو کیا کہتے ہیں, غیر منقوطہ. کیا کہتے ہیں, ایک ہے منقوطہ, ایک ہے غیر منقوطہ. منقوطہ یعنی نقطوں والے حروف اور غیر منقوطہ بغیر نقطوں والے حروف. اور حروف فوقانی کس کو بولتے ہیں, فوقانی بولتے ہیں جن حرف پر نقطہ ہو اسے فوقانی, جیسے تا ہے, خا ہے, زا ہے, غال ہے وغیرہ. اور تحتانی کسے کہتے ہیں, جن حرف کے نیچے نقطے ہوں, جیسے جیم ہے, با ہے, با ہے وغیرہ وہ. اور بیچ میں وہ اسے متوسطہ کہتے ہیں, جیسے جیم متوسطہ جیم. اور تحتانی نیچے ہو اور متوسطہ بیچ میں ہو, یہ تو درمیان. درمیان وہی تو اتنے زیادہ کٹھن نہیں ہے. ہاں حروف مدہ کا میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ حروف مدہ کتنے ہیں, حروف مدہ 3 ہیں. ہاں ان کا مجمع کیا ہے, واو. واو کون کون سے, واو, الف, یا. اس کا قاعدہ کیا ہوگا, جہاں بھی یہ حروف آئیں گے, یہ جہاں بھی, تو پہلے تو یہ خود ساکن ہوں گے اور ان کے ماقبل ان کی موافقت کی حرکت ہوگی تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے, یعنی کھینچ کر پڑھا جائے گا. مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ یذہبون, یذہبون واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے, یذہبون, 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 یذہبون. ہاں یہ واو کی مثال ہے. اور الف کی مثال کیا ہے, الف کی الف اس پہ حرکت آتی نہیں, اس کے ماقبل کیا ہوگا, فتح, زبر ہوگا, اور وغیرہ. ہاں اور یعنی یا کی مثال کیسے ہوگی, یہ خود ساکن ہوگا, 2 حروف ساکن ہوں گے, یا ساکن ہوگا, اس سے پہلے مکسور ہوگا, تو یہ حرف مدہ کرا جائے. قریب, قریب, بعید, العالمین, کریم وغیرہ وغیرہ. یہ بالکل آسان تھا اس لیے دوہرا دیا. اور حروف لین کون کون سے ہیں, حروف لین ایک تو ہے واو اور دوسرا ہے یا. ہاں اس کو نرمی کے ساتھ لین کہتے ہیں, نرمی کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جیسے واو ہوگا اس سے پہلے زبر ہوگا, یا ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہوگا, تو یہ نرمی کے ساتھ ادا. خوف, جیسے خوف, علیہم, علیہم, خوف, علیہم وغیرہ اس طرح. اور اس کے بعد نظائر حروف مدہ. کیا, نظائر حروف مدہ, نظر آنے والے حروف مدہ. پہلے اپنے تو یعنی وہ حروف تھے جو نظر نہیں آتے, اگر یہ ان کی حرکتیں نظر آئیں گی, کام ان کا وہی ہے جو حروف مدہ کا تھا. الف کے مقابل میں کیا ہوگا, کھڑا زبر, وہ بتا دیا ہے کھڑا زبر کس کو بولتے ہیں, کھڑا زبر. یہ الف کا کام کرے گا, اور کھڑی زیر یہ یا کا کام کرے گا, اور الٹا پیش یہ ضمہ پیش کا کام کرے. اس میں وہی, اس کا قاعدہ وہی ہے جو اس کا قاعدہ ہے. ہاں کن کا, حروف مدہ کا. سمجھ گئے, حروف مدہ آپ کو لکھوا دوں. یہ تو سمجھ آ گیا آپ کو الحمدللہ. ہاں یہ جو ابھی بتائیں وہ اس کو آسانی کے ساتھ بتا دوں. حروف مدہ کتنے ہیں, حروف مدہ 3 ہیں, واو, الف اور یا. تو ان کا مدہ کب ہوں گے, یہ خود پہلے ساکن ہوگا, یہ بھی ساکن ہوگا, اس سے پہلے زیر ہوگی, اس سے پہلے جو بھی حرف آئے گا اس سے پہلے, جیسے ہے قریبن, دیکھو قریبن یہ ساکن ہے, اس سے پہلے زیر ہے, قری, یہ مدہ ہو جائے. واو ہے یو ٹے نون, یو ٹے نون, یہ خود ساکن ہے, اس سے پہلے دمہ ہے. سمجھ میں. ہاں اور الف ہے, جیسے قال, یہ اس پر خالی از حرکت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. تو یہ کیا ان کے جو سمجھ لو بھائی ہیں,
दिखने में अलग आते हैं मगर काम वही करते हैं। जो अलिफ करता है वो खड़ा जबर काम करेगा, और यहाँ जो काम करेगा वो खड़ी जेर काम करेगी, और जो वाव काम करता है वो क्या करेगा, वो उल्टा पेश काम करेगा। समझ, जिन हरफ पर आ जाए। हाँ, तो इनका नाम थोड़ा सा, इनका ये उर्फ मद्दा थे, और ये भी उर्फ मद्दा ये, मगर क्या करेंगे, नज़ायर उर्फ मद्दा का बयान, नज़ायर उर्फ मद्दा कहेंगे। समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद थोड़ा सा और जिक्र कर दें ताकि अपने लेक्चर तक पहुंच जाए। नून साकिन और नून तनवीन के कितने कायदे वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया था बहुत अच्छी तरह से। नून साकिन और नून तनवीन, क्या नून साकिन और नून तनवीन के कितने कायदे हैं, नाम लिखे, वो मैंने बता दिया था। और नून साकिन और नून तनवीन, क्या नून तनवीन, हाँ, नून साकिन, क्या नून साकिन और नून तनवीन, क्या नून तनवीन, हाँ, दो है। ये अपना ये समझो पलाई में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खुसूसियत के साथ। जो मैंने बोला था कि ये इसका मरकज़ महवर क्या है, तो नून साकिन और नून तनवीन और मीम साकिन, इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा ये पूरा कलाम। हाँ, तो एक तो है नून, क्या नून साकिन, बोलो नून साकिन, नून साकिन, नून साकिन की कैसे होती है नून साकिन, ये है नून साकिन। फिर है नून तनवीन, क्या नून तनवीन, हाँ, नून तनवीन, हाँ। इनके कायदे कितने हैं, इनके चार कायदे। इनके कितने कायदे हैं, चार। एक है, क्या है बोलो, इजहार, क्या इजहार। दूसरा कायदा क्या है बोलो, इदगाम, क्या इदगाम। हाँ, तीसरा कायदा क्या है, इक़लाब, क्या इक़लाब। चौथा कायदा क्या है, इख्फा, इख्फा। ये चार कायदे आ गए। इसका मैंने बोल दिया, इजहार का बोल दिया। क्यों, कैसे बोल दिया? इजहार वाले हर्फ कौन से हैं, हुरूफ हल्की कौन से हैं, कितने हैं, 6 हैं। मखरज 3 है, कितने, 3 है। मखरज 3 सही बात है, मगर हुरूफ कितने हैं, 6 है। कौन कौन से बोलो, हमजा, हाँ, एक हमजा, दूसरा माशाअल्लाह, तीसरा ऐन, और चौथा हा माशाअल्लाह, और पांचवा गैन, और छठा खा माशाअल्लाह। हाँ, ये हुरूफ। अब इनका कायदा क्या है, इनका कायदा ये कि कुरान शरीफ में जहां भी ये हुरूफ आएंगे, जहां भी ये हुरूफ जब भी आएंगे, तो नून साकिन और नून तनवीन के बाद इन हुरूफों में से कोई भी हरफ, हमजा आए, हाय, ऐन आए, हाय, गैन और खाए, इन हुरूफों में से कोई हरफ आए तो नून साकिन और नून तनवीन का गुन्ना नहीं होगा, बल्कि इजहार होगा। एक, हाँ, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा जाएगा, सीधा। यानी नहीं बोला जाएगा। वो एक मिसाल दी, वैसे सबकी मिसाल दे दी, हमजा की मिसाल दे दी है, दोनों की, तनवीन वाली भी, नून साकिन वाली भी तनवीन की मिसाल दे दी है, हा की मिसाल भी दे दी, आइन की, हा की, और गैन की, और खा की, तनवीन वाली भी और साकिन वाली भी। ये है नून साकिन आया, और इसके बाद इनमें से जो हर्फ आए इनकी मिसाल दे दी अगले वाले सबक में, 2 सबकों में पहले। और तनवीन वाली भी मिसाल दी थी, 2 जबर आएगा किसी भी हरफ पर, जैसे बा है, इन पर 2 जबर आया है, करीबों, फिर इनके बाद अगर कोई इन हुरूफों में से कोई अगर हर्फ आएगा तो बो नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि बुन आगे बढ़े जाएगा। करीबुन अलीम ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। और फिर इदगाम, क्या इदगाम, हाँ, इदगाम। अब क्या, अब सबक क्या, कौन सा बाकी है, वो हो गया। इस हुरूफ के इज़हार के वाले के हो गया। इसके बाद क्या, कौन सा चैप्टर है, इसके बाद है सबकी मिसालें दे दी थी, हुरूफ हल्की कौन से हैं, क्या क्या हैं, वो सब अच्छी तरह से समझा दी। सबकी मिसालें भी आपके सामने अर्ज कर दी। नून साकिन और नून के तनवीन के बाद हुरूफ इज़हार में से कौन, खाई, जैसे खाई है,
मिन खौफिन, मिन खौफिन नहीं पढ़ा जाएगा, लिख के बता दिया था, लिख के बता दिया। मिन खौफिन, क्यों खै हुरूफे इन हुरूफों में से, खै इन हुरूफों में से, इजहार में से, और नून तो साकिन है, गुन्ना नाक में आवाज आनी चाहिए मगर नहीं आएगी, इन हुरूफों के अलावा में आएगी, इन हुरूफों के अलावा में आएगी, मगर जहां ये हुरूफ बाद में आएंगे नून साकिन और नून तनवीन के बाद तो इजहार होगा। मिन खौफिन, एक मिसाल दे देता हूं, मिन खौफिन, क्या मिन, तो नून साकिन तो है मगर खै में इन हुरूफों में से कोई हर्फ आ गया या हमजा आ गया। मन आमना, देखो क्या मन आमन, मौ नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि हमजा यहाँ आ गया आमन में, हाँ समझ में है। फिर यहाँ अगर कोई तनवीन आ गई, जैसे यहाँ दो जबर है या दो जीरा दो पेश है और इसके बाद इन्हीं हुरूफों में से कोई हर्फ आएगा तो भी इजहार होगा। छह और सबकी मिसाल है, छह हुरूफों की, नून साकिन की मिसाल भी दी थी और तनवीन वालों की सबकी मिसाल आपको अर्ज कर दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और इसके बाद जो सबक है वो अपना कौन सा सबक है, वो है इख्फा का। कौन सा? ये वाला इख्फा। इज़हार हो गया, अब इख्फा पढ़ते हैं। इख्फा का क्या है? इख्फा पहले तो क्या है, इख्फा कहते किसको है? छुपाना। हाँ, क्या? छुपाना। इख्फा किसको बोलते हैं? छुपाना। हाँ, ये चार जो अभी हरफ पढ़े ना अपने, चार जी। पहला क्या पढ़ा? इजहार। पहला क्या पढ़ा? इजहार। इजहार। अब हम दूसरा पढ़े, वो है क्या? इख्फा। क्या? इख्फा। हाँ, वो जाहिर करना था, ये इसको छुपाना था। इख्फा। इख्फा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इख्फा किसे कहते हैं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह माना याद है। इख्फा का माना है छुपाना। हाँ, इख्फा का माना है छुपाना। इख्फा का माना है छुपाना, लिखने की भी जरूरत नहीं है। और हुरूफ इख्फा कितने और कौन कौन से हैं वो आपको मैंने कल लिखा दी थी। कितने हुरूफ हैं वो? 15। 6 वो निकाल देंगे। कौन से निकाल देंगे? इजहार वाले, जो हुरूफ हल्की है वो निकाल देंगे। हाँ, और दूसरे कौन से निकाल देंगे? हुरूफ मद्दा वाले निकाल देंगे। हुरूफ मद्दा वाले निकाल देंगे और यरमलून वाले भी निकाल देंगे। यरमलून में जो हुरूफ आते हैं वो इसका 6 वो भी निकाल देंगे और जो बचते हैं उसमें इख्फा होगा, यानी नाक में आवाज को छुपाना, इसको इख्फा कहते हैं। नाक में आवाज को छुपाना। हुरूफ इख्फा कितने? 15 है, वो मैंने बता दिया। ता है, हा है, जीम है, हा खा नहीं आएगा। इनकी गिनती 30 होती है ऐसा? हाँ, 29 है ना? 29 है। तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको क्यों कंफ्यूज हो गए हैं, वो लाम अलिफ है ना, वो लाम अलिफ उसके हिसाब से 30 होते हैं मगर है 29। वो क्यों है वो बात बताएंगे इंशाअल्लाह। वैसे गिनती में 30 भी आ जाते हैं मगर वो अलिफ लाम है। लाम तो आ गया और अलिफ वो तो हरकत है नहीं, वो यानी कहां से अदा होता है, किसकी हरकत क्या है, इस पर हरकत है ही नहीं, ऐसे इसका मखरज भी नहीं है। देखो अलिफ इसका मखरज भी नहीं है, यानी अभी आपने बोला ना मुंह की खाली जगह से, या प्रॉपर बोलते हैं क्या, प्रॉपर इसकी कोई जगह नहीं है। जैसे ऐन की जगह है, हा की जगह है, खौ की जगह है, गैन की जगह है ना, दौद की जगह, हर हरफ की जगह है, उसका कोई मखरज भी नहीं है। तो इसकी और बहुत सी मिसाल अगर अंदर जाएंगे तो फिर मामला हो जाएगा। वो आपको हमजा और इनका दोनों का फर्क तो बता दिया आपको। बगैर हरकत के होता है ये, और इसमें झटका नहीं होता। हमजा में झटका होता है और इस पर हरकत आती है। जी, पहले नहीं होता। और तीसरा ये अलग है, वो पहले नहीं होता। ये तो अभी नहीं बताया, उसको याद है, पहले बताया। वो लफ्ज के पहले नहीं आता, पहले आ जाए तो वो क्या हमजा हो जाएगा, और हरकत आ जाए तो भी हमजा हो जाएगा। झटके के साथ अदा नहीं करना चाहिए इसको। तीन इसके और दूसरे भी फर्क हैं। एक माना हो गए, 15 हो गए। लिखाने की भी जरूरत नहीं है, लिखाने की जरूरत है, लिखा दूं कौन से हुरूफ इख्फा। हुरूफ इख्फा कितना है? वो लिख लिए। हाँ, तो मैं आपको मुंह से बता देता हूँ। ता है, जीम है और हा खा आ गया, फिर दाल है और जा है, दाल है,
सीन है, शीन है, स्वाद है, दाद है, तौ, दा, फिर ऐन गैन, फिर उसमें आ गए, फिर फा और काफ और काफ, ये हो गए कितने 15। हाँ, अलिफ बा इसमें नहीं आ जाएगा, फिर सीधा होगा, फिर हा खा नहीं गिनेंगे, इसके बाद वही हुरूफ है, फिर ऐन गैन निकल जाएंगे, इसके बाद वही हुरूफ है और काफ तक। हाँ, फिर हुरूफ इख्फा का हुक्म क्या है ये बताया था आपको। हुरूफ इख्फा का हुक्म ये है कि इनके माक़बल अगर नून साकिन और नून तनवीन हो तो आवाज को नून के मखरज में छुपा कर अदा करते हैं। इन हुरूफों में जो ये है जो अभी बताया, हाँ, जहां भी नून साकिन, क्या ऐसी नून साकिन आएगी या कोई भी हरफ तनवीन वाला आएगा, क्या कोई भी हरफ तनवीन वाला आएगा, दो जबर आएगा या दो पेश वाला आएगा या दो जेर वाला आएगा, और इसके बाद इन 15 हुरूफों में से कोई हरफ आएगा तो नाक में आवाज को छुपा के पढ़ेंगे। जब किरत में पढ़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसमें बहुत आपको समझ में इंशाल्लाह ताला आएगा। ये हो गया। इसके बाद आप देखो यानी कलकला का भी बता दूं आपको, क्या कलकला, हुरूफ कलकला, कलकला का इंशाल्लाह ताला चलो कल रखें कि ये जो इसमें जो 4 चीजें आ गई है ना वो लिखवा दूं। जी, इसमें 4 चीजें आ गई है वो लिखवा दूं। एक क्या क्या हो गया, या इज़हार हो गया, इख्फा हो गया, अब क्या इदगाम, 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 तो तीसरा कौन है, इदगाम। देखो तीसरा क्या है, इदगाम। हाँ, इदगाम, इदगाम क्या है, इदगाम जो अभी लिखा है यरमलून, हाँ ये इदगाम है, समझे। अब इसको क्या सवाल क्या, इदगाम किसे कहते हैं, तो अरबी अगर किसी को आती है तो वो लिख ले, हुवा दम्मु शैअ शैइ इला शै, यानी इसका उर्दू में तर्जुमा क्या है, एक शय का दूसरी शय में दम हो जाना, शामिल होना, पेवस्त हो जाना, इसको इदगाम दिया। मैंने आपको कच्ची में बोला घुस जाना, एक अरब को दूसरे रूप में घुसेड़ देना, समझ में कैसे, वो आपको मिसाल बताऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो वो इनके उरूफ, इदगाम के उरूफ कितने हैं, 5 हैं। कौन से, हाँ, इनका मजमुआ पहले लिख लेते हैं, यरमलून, कौन से, यरमलून, वो कौन से 5 उरूफ, एक तो या है, एक तो रा है, एक तो मीम है, लाम है और वाव है, और 6 हो गए नून। 6 हो गए, चलो कितने हो गए, यरमलून, यरमलून, यरमलून। ये हुरूफ उस इज़हार में नहीं आए थे, हल्की में भी नहीं आए थे। हाँ, ये मद्दा में आया था वाह और या भी, वो दोनों आया था। हाँ, मगर हुरूफ मतलब इसलिए 30, हाँ इसलिए 30 होते थे, लेकिन अब 29 हो गए क्योंकि ये नहीं वो ये तो इसका मामला अलग है। ऐसा है, इसका ये भी आया था ना, ये भी या भी आया था, या भी आया था और वाह भी आया था। हाँ, इसका मामला अलग है। और मैंने बोला था कि ये 5 है मगर ये 6 है, यरमलून 6 है। तो इसका क्या करेंगे, या है यरमलून हो गया। हुरूफ इदगाम कितने और कौन कौन से, हुरूफ यरमलून 6 हैं, और वो कौन कौन से, या रा मीम लाम व नून, यरमलून हो गया। हाँ, और हुरूफ इदगाम का मजमुआ क्या है, जो मैं लिख दिया है, यरमलून। हुरूफ इदगाम का हुक्म क्या है, आखिर में बता दूं आपको, इसका हुक्म क्या है। देखो अब इनका हुक्म क्या है, सवाल क्या है, सवाल है इनका हुक्म क्या, इनका हुक्म, इन हुरूफों का हुक्म क्या हाँ, है, इन हुरूफों का हुक्म क्या है, इन हुरूफों का हुक्म क्या है, जवाब लिखो। इन हुरूफों का हुक्म ये है, हुरूफ इदगाम का हुक्म ये है कि जहां इन में से कोई एक हरफ भी आएगा और अगर उनका माकबल साकिन हुआ तो हुरूफ इदगाम माकबल को अपने अंदर मुदगम कर लेगा, जैसे मैं यामल, जैसे मैं यामल। हाँ, क्या जवाब क्या है, हुरूफ इदगाम का हुक्म ये है, हुरूफ इदगाम का हुक्म
कि हुरूफ इदगाम का हुक्म ये है कि जहां इनमें से कोई एक हर्फ भी आएगा, जहां इनमें से कोई हर्फ आएगा, जहां इनमें से कोई हर्फ आएगा, इनमें से कोई हर्फ आएगा, और अगर इनका माकबल साकिन हो, शर्त है, अगर इनका माकबल, अगर के आर्टिकल्स हैं, अगर इनका माकबल का माना बताया था, इनका माकबल, इनके हरफ से पहले इनका माकबल साकिन हो, साकिन का माना भी बताया था आपको, हाँ, इनका माकबल साकिन हो, हाँ, इनका माकबल साकिन हो, तो हुरूफ इदगाम का माकबल को अपने अंदर मुदगम कर लेगा। हो तो साकिन हो तो, हाँ, हो तो हुरूफ इदगाम माकबल को, हुरूफ इदगाम माकबल को क्या, माकबल को अपने अंदर मुदगम कर लेगा, अपने अंदर मुदगम कर लेगा, वो बताता हूं, मुदगम कर लेगा, जैसे मैं यामल, जैसे मैं यामल, देखो इसके अब इस मिसाल को आप देखेंगे तो आपको ज़हन में बैठ जाएगा, ऐसे नहीं बैठेगा। देखो सुन लो अब इसका हुक्म क्या है, खास करके इख्फा का, इदगाम का क्या करते हैं हम, इदगाम का आज हम हुक्म सुनते हैं तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। क्या इनका हुक्म क्या है, तो जवाब क्या है, हुरूफ इदगाम का हुक्म ये है, हुरूफ इदगाम का हुक्म ये, क्या हुक्म है, जहां इनमें से कोई हुरूफ, इनमें से कौन में से, हाँ, यरमलून में से, क्या, या में से, या रा में से, या मीम में से, लाम में से, वाव में से, नून में, इनमें से अगर इससे पहले, इससे माकबल साकिन होगा, कोई हरफ भी साकिन होगा, तो क्या होगा, वो अपने अंदर मुदगम, यानी मुदगम को मैंने बता दिया, अंदर को घुसेड़ देना, अंदर अपने अंदर जज्ब कर लेना। इसके कितने माना बताए, हाँ, दम का माना क्या है, पेवस्त हो जाना, यानी जैसे तीर है, तीर है, तीर को में घुसी हुई, तो उनके को जो तीर है गोली जिस्म में डुली हुई है, तीर होता है वो जिस्म जैसे घुस जाती है, ऐसे ये हरफ भी अंदर को घुस जाएगा, और फिर वो पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा हमेशा, मगर पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो अंदर उसमें अपने अंदर समो लिया। तो एक तो है पेवस्त हो जाना, शामिल हो जाना, दम हो जाना, अंदर पेवस्त है, घुसी हुई, समझ में है, हाँ, इदगाम कहलाता है, हाँ। और वो उर्फ ये है, इनका माकबल ये, हाँ, मैं यामल, देखो एक मिसाल दे दी है, यहां लिख दी है, मगर यहां बताता हूं आपको, है क्या, मन है, क्या है, मन या मल, क्या, मन या क्या, मन या मल, तो यहां मन या मल है, क्या है, मन या मल है, ये हुरूफ क्या है, यरमलून में से, ये या यरमलून में से है या नहीं, या तो रे आएगा, या तो मीम आएगा, लाम आएगा, वाव आएगा, नू आएगा, तो यहाँ कौन सा आया, या। और खुद इसका खुद का कुछ नहीं है, जबर हो या जेर हो या पेश हो, उसका नहीं, ये देखने का इससे माकबल कौन है, तो क्या होगा, साकिन होगा, इसके माकबल साकिन होगा। तो अब मन नहीं पढ़ेंगे बल्कि मैं पढ़ेंगे,
क्या करेंगे जज़म होगा तो नून, जज़म होगा हाँ इससे पहले साकिन जज़म होगा। होगा साकिन होगा तो समझी गनो जडा पण ई अखर यानी इन्हीं अखरे में जाती 6 अखरे में जाती ई अगर इन हरकत थी पहला कोई पण अखर साकिन हुंदो विगर जबर जेर पेश जो हुंदो तो उ पिंड जे अंदर घुसेड़े गिंदो किन के 6 अखर के मन यामल नहीं पढ़ा जे मन यामल नहीं अमल नून खामोश रहे हाँ वैसे नून साइलेंट नहीं ना जैसे अब दूसरा मिसाल दे मिर रब्बे उसका में दस्ती क्या डबल पढ़ा नहीं बहुत भाई पढ़ा मरे भाई हेड के पे समझ पाको नहीं पढ़ो या मिर समझे रब्बे मिर रब्बे देखो मिन रब्बे नहीं पढ़ेंगे मिन रब्बे नहीं ये क्या है हरकत रे रे कौन सा है ये यरमलू में से और यहाँ क्या कौन सा हर्फ है कोई भी आए ये तो नून है यहाँ भी नून है मगर अगर कोई भी आया और वो हर्फ क्या होगा साकिन होगा देखना साकिन होगा तो ये है इसमें घुसेड़ देंगे इसको इसे इसमें डाल देंगे इसको मिर रब्बे मिर ये नहीं पढ़ा जाएगा लिखा जाएगा चाहे नून हो हमेशा कोई भी हो कोई भी है वो कोई मिर रब्बे हाँ तो इन और नाम आएगा हाँ 2 आ गई हाँ अब तीसरी अब मिन की मिसाल दो मिम मन हाँ अब मिन मन नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे मिम मन समझ आए तीसरी मिसाल समझ आए और उसके बाद वाला 2 बार पढ़ा जाएगा ना हाँ वो दो बार पढ़ा जाएगा क्यों उस पर उसका भी कुछ तो अंदर आ गया तो वो जज्बा तो दिखाएगा हाँ तो घुस गया है उसमें वो अगला अर्थ तो वो झटके के साथ घुसा मारते हैं घुसेड़ दिया अमल हाँ सबकी मिसालें आगे आएगी मैंने अभी बता दिया कि या की मिसाल बता दी रा की मिसाल बता दी मीम की मिसाल बता दी और और देखो ये अल्लाह में है ये अल्लाह देखो ये मिसाल अच्छा ये लाम वाली मिसाल आ गई है अल ला नहीं पढ़ते अल ला नहीं पढ़ते वो अलग हो जाएगा वो तो नहीं बनते सब क्या करेंगे वो क्या खुद जो भी हो मगर इससे पहले साकिन होगा अल ऐसे है ये अल ऐसे है अल है ना ऐसे अल है अगर दूसरा लाम आ गया हाँ तो अल ला नहीं पढ़ेंगे अल्लाह बल्कि क्या पढ़ेंगे अल्लाह क्या समझ में अल्लाह अल्लाह नहीं पढ़ेंगे बल्कि अल्लाह वो एक लाम था इस लाम में घुसेड़ दिया क्यों इस पे जो भी हरकत हो मगर इससे पहले साकिन था एक लाम तो साकिन था अल था क्या था असल में है ये लहू क्या था लहू हाँ और अब इसके लहू है और अब ये इनके साथ मिलाना है कौन सा ये मिलाना है ये मिलाना है कौन सा अल मिलाना है तो लाम यरमलूम में से लाम है और ये क्या है लाम साकिन हाँ साकिन है कौन सा ये इसके पहले है ये लाम क्या है ये लाम तो इस पर जबर हो जेर हो कोई भी हो मगर इससे पहले यरमलून में से और साकिन हो यरमलून में से और साकिन हो तो क्या कैसे पढ़ेंगे अल्लाह पढ़ेंगे क्या अल्लाह लहू नहीं पढ़ेंगे अल्लाहू नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे अल्लाह तस्दीक है ना देखो अल्लाह क्या अल्लाह समझ में है अल्लाह वो मिसाल तो है थी नहीं जहन में अगर है इसी तरह ही हाँ वो क्योंकि इसमें 2 लाम है ना समझ में है और वाव भी इसी तरह होता है आएगी सबकी मिसालें आएगी इंशाल्लाह ताला ज़हन में कुछ नो तो हो गया ये ज़हन में आ गया इदगाम भी हो गया अब क्या है इदगाम अब है इख्फा भी हो गया इदगाम भी हो गया अब है अब कौन सा बाकी रह गया अब है इदगाम बिल गुन्ना और बिला गुन्ना भी आता है वो बाद में समझाएंगे इंशाल्लाह ताला अब इंशाल्लाह तबारक व ताला आपको बताएंगे इक़लाब क्या इक़लाब किसका होता है इक़लाब
وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ابھی بتا دوں تاکہ یہ چیپٹر پورا ہو جائے. کیا اقلاب کا پتہ ہے نا آپ کو؟ اقلاب یہ پورے چیپٹر ہے پورا ہو جائے. ہاں یہ من یعمل ہے نیچے والا من. ہاں من یعمل. دیکھو یہ رہا، یہ مثال لکھ دی من یعمل. عین ہے یہ من یعمل. عین ہے نہیں، ہاں یہ ہے این ہے نا. من یعمل. یہ میم ہے یا یہ میم ہے؟ من یعمل. دیکھو یہ میم ہے. یرملون تو لکھا ہوا ہے، بلے لکھا ہوا ہے. من یعمل کیا؟ من یعمل. پہلے تھا کیا؟ من تھا، من تھا. اب یعمل. یہ ہے، یہ عین ہے، میم ہے، لام ہے. من یعمل. من یعمل کیا؟ من یعمل. ہو گیا نا، اس میں اندر ہو گیا. اب اخفا کا پڑھتے ہیں. کیا؟ اقلاب کا معنی کیا ہے؟ 4 ہو گئے. بدلنا. ہاں، اقلاب کا معنی کیا ہے؟ بدلنا. اب اقلاب کا بتا دوں، یہ تو ذہن میں الحمدللہ بیٹھ گیا ہوگا تاکہ وہ اپنا چیپٹر پورا ہو جائے. اب ہے اقلاب. چوتھا کیا ہے؟ اقلاب. کیا؟ اقلاب کیا؟ یہ آپ لکھ لیں. اقلاب کیا ہے؟ اقلاب کا معنی ہے بدلنا. اقلاب کا معنی کیا ہے اور حروف اقلاب کتنے ہیں سمجھ لو. اقلاب کا معنی ہے تبدیل کرنا. اقلاب کا معنی کیا ہے؟ پہلا سوال اس کا آئے گا. اقلاب میں حکم کیا ہے اس کا؟ ہاں بتاتا ہوں. اقلاب چیپٹر ہے چوتھا. اقلاب کا معنی کیا ہے؟ بدلنا، چینج ہو جانا، ہاں، تبدیل ہو جانا، تبدیل کرنا وغیرہ. حروف اقلاب صرف ایک ہے. کتنے ہیں؟ صرف ایک ہے. اور اس کا قاعدہ بھی بالکل آسان ہے. حروف اقلاب کتنے ہیں؟ ایک. ہاں، اب میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں. سنو بیٹا جی. ہاں، اظہار کے حروف کتنے ہیں؟ اظہار کے حروف کتنے ہیں؟ 5 کہاں ہیں؟ کتنے ہیں؟ 6. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. حروف اظہار یا حروف حلقی 6 ہیں. اخفا کے کتنے ہیں؟ اخفا کے 15. کتنے؟ 15. اور ادغام کے ابھی لکھا جا رہا. ادغام کے گسرنا وہی بولا یرملون. وہ بھی 6 اور یہ بھی 6. اور اب ہے اقلاب. ہاں، اظہار کے حروف تھے 6 اور اخفا کے 6 اور ادغام کے اخفا کے کتنے تھے؟ 15. اور ادغام کے 6. ہاں، اب ہے اقلاب. کیا؟ اقلاب کے کتنے ہیں؟ 1. اب وہ کون ہے؟ وہ ہے با. کیا ہے؟ با ہے. وہ لکھا تھا ہوں. اب سوال اس میں بہت سے 3 سوال آ گئے، لکھ لو. پہلا سوال کیا ہے؟ اقلاب کا معنی کیا ہے؟ دوسرا، حروف اقلاب کتنے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ اقلاب کا معنی ہے تبدیل کرنا، بدلنا، تبدیل کرنا. حروف اقلاب صرف کتنے ہیں؟ 1 ہیں. وہ کون سا ہے؟ وہ با ہے. حروف اقلاب کا حکم کیا ہے؟ آخری سوال. حروف اقلاب کا حکم کیا ہے؟ حروف اقلاب کا حکم سن لو. حروف اقلاب کا حکم آپ کو میں ابھی یہاں سے دکھاتا ہوں. اقلاب یہ آخری سوال ہے اور اپنا ٹائم بھی
खत्म हो गया। इकलाब का माना क्या है? तब्दील करना। हाँ, तब्दील करना। इकलाब का माना तब्दील करना। हाँ, और अब हुक्म बताना। नून साकिन, क्या? नून साकिन और नून तनवीन के बाद वही, अगर वो पहला वाला याद हो गया इजहार वाला तो आपको शब्द याद है। नून साकिन और नून तनवीन के बाद क्या? नून साकिन और नून तनवीन के बाद। ये सवाल तो आप क्या ना, आपको सवाल क्या था? इसका हुक्म, इनका हुक्म। हुक्म नहीं बोल रहे क्या? हुक्म, क्या बोलो? हुक्म। इनका हुक्म क्या है? इनका हुक्म क्या है? हाँ, जवाब सुनो। जवाब, नून साकिन बोलो। नून साकिन और नून तनवीन। ये तो आपको आता है। नून साकिन कौन सी है, नून तनवीन अच्छी तरह से घुस गई है जहन में। नून साकिन के बाद हुरूफ इक़लाब हो तो इसे छोटी मीम से बदल देंगे। इनको छोटी मीम से बदल देंगे। इनको छोटी मीम से बदल देंगे। हाँ, हुरूफ इक़लाब में से हो, तनवीन के बाद हुरूफ इक़लाब हो। हाँ, तनवीन के बाद हुरूफ बाद हुरूफ इक़लाब हो के बाद हुरूफ इक़लाब हो तो इक़लाब, हुरूफ इक़लाब, क्या कौन सा? बा। तनवीन के बाद हो तो बा है तो उसको क्या करेंगे? मीम से बदल देंगे। उसको छोटी मीम से बदलेंगे। क्या? छोटी मीम से बदल देंगे। उसको छोटी मीम से बदल देंगे। उसको छोटी मीम से बदल दिया गया है। उसको छोटी मीम से बदल देंगे। हाँ, उसकी आपको बस एक मिसाल देके आपको आज का चैप्टर इंशाल्लाह दोबारा को ताला खत्म करते हैं। उसकी मिसाल है नून साकिन और नून तनवीन के बाद। हाँ, नून साकिन और नून साकिन और नून तनवीन के बाद। अब यहाँ कोई भी कौन सा हरफ लगाना पड़ेगा? हाँ, बा लगाना पड़ेगा। अब बा से कोई भी हरफ लगा लो तो वो क्या छोटी मीम से बदल जाएगा। छोटी मीम से। अब बा कैसे लगाएंगे? मर। क्या? छोटी मीम से कब बदलेंगे? जब बा आएगा तो क्या यहाँ से बा लगाएंगे। हाँ, तो बा से कौन सा हरफ अदा होता है? ऐसे है नहीं, ऐसे लिखा हुआ नहीं है इस तरह, मगर मैं आपको मिसाल, वो असल मिसाल नहीं मिल रही अभी, तो इसलिए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ क्या है? बी है तो मिम। हाँ, मिम बिस्मे, मिम बिस्मे, मिम बिस्मे पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? हाँ, ये कैसे? ये मीम है, नून नहीं पढ़ा जाएगा। और फिर बा को क्या करेंगे? छोटी मीम से बदल देंगे। तो मिम, मिन नहीं पढ़ेंगे, मिम बिस्मे। क्या करेंगे? मिम बिस्मे, यानी बा को मीम, छोटी मीम से बदल दिया। इसकी मिसाल दूसरी भी आएगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आ गया ना? समझ में, यानी इस जहां भी नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफ इक़लाब में से बा, हुरूफ इक़लाब कौन सा? बा हो तो इसको छोटी मीम से बदल देंगे। तो मिम, मिन नहीं पढ़ेंगे, मिम। हाँ, बे नहीं पढ़ा जाएगा, मिम नून भी नहीं पढ़ा जाएगा, सीधा मिम। फिर आगे नून भी नहीं पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाह आए, इस तरह पढ़ा जाता है। और इंशाअल्लाह ताला वो बताता हूँ आपको। नून भी नहीं पढ़ा जाएगा जी, नून नून जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीम साकिन और नून के बाद इसकी मिसाल इसमें दी नहीं हुई है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अभी ब्रेक लगा दो तो मैं समझाता हूँ। पूरा करो ना, ब्रेक लगा। बस हाँ, पूरा